Hello, students. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School, Chadeshwar. So, welcome back to my class. So, students, yesterday we started the chapter 14, talking about future, and we learned about the usage of will and going to. So today we would be continuing with the usage of shall, referring to future tense. As we studied, we use will for the actions that we know it is going to happen, or we believe that it's going to happen in the future. And we also use it for the activities about which we decide at the moment we speak. So when we talk about the actions or which are going to happen, which we know, हम जानते हैं कि वो होने वाला है और हम मानते हैं कि वो चीज़ हो सकती है फ्यूचर में, तो हमें विल यूज़ करना है। और उन चीज़ों के लिए जिसके बारे में हम बोलने के टाइम पर डिसाइड करते हैं कि इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, राइट? सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ विल एंड गोइंग टू. Going to is used for two situations. The first one is we know what is going to happen exactly in the future because we have already decided. हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो हम उसके बारे में जब बात करते हैं तो हमें गोइंग टू यूज़ करना है. एंड ऑल्सो अबाउट द एक्शंस विच वी नो दैट इट विल डेफिनेटली हैपन ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस विच वी सी इन द प्रेजेंट. मतलब ऐसी एक्शंस जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो होने ही वाली है. क्यों? क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उस हिसाब से फ्यूचर में क्या हो सकता है, राइट? वो बात बताने के लिए हमें गोइंग टू यूज़ करना है. ओके, सो लेट्स सी एक्सरसाइज A and B which I gave you homework yesterday, and after that we would move towards the next topic, that is shall. So let's see exercise A. Imagine we succeed in setting up a city on the Mars. What do you think life will be like on Mars in 2050? So here you can see that we are going to talk about something which is in future, right? And we don't even know कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, राइट? इसीलिए यहाँ पे जो सेंटेंस बनेंगे उसमें हम या तो विल यूज़ करेंगे या फिर विल नॉट यूज़ करेंगे. वी कैन राइट अबाउट what would be the life on Mars in 2050, how will children study, how will people how will people live. So here I have written 5 sentences. This is just the sample answer. You can write your own answer too. So let's see the first sentence. People will use space suits to walk outside. So here I have used will along with the verb, right? तो यहाँ पे विल के साथ हमने वर्ब का कौन सा वाला बेस यूज़ किया है? फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म. ओके. डेजर्ट स्पोर्ट्स विल बी पॉपुलर. हियर देयर इज नो अदर वर्ब, सो वी हैव यूज्ड ओनली बी, दैट इज बी फॉर्म. ठीक है, क्योंकि हम बी का जो फॉर्म है इज एम आर वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं और वॉज और वर है वो पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. तो बी का कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जो हम विल के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम डायरेक्टली बी ही यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. डेजर्ट स्पोर्ट्स विल बी पॉपुलर. पीपल विल ट्रैवल टू अर्थ ऑन ह्यूज स्पेसशिप्स. हियर यू कैन सी विल ट्रैवल, राइट? नाउ फोर्थ सेंटेंस, चिल्ड्रन विल स्टडी मार्शियन geography. See, will study. And the last one is people will live inside air conditioned houses. Again here you have the word will live. Okay, now let's see exercise B. Read the situations in column A. Based on that, say what is going to happen. Write your answer in column B and remember to use going to. So here there are some situations going on which are being written over here in column A, और उसके बेसिस पर क्या हो सकता है. ठीक है, अभी जो हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन है वो दी हुई है, तो उसके बेसिस में फ्यूचर में क्या हो सकता है, डेफिनेटली जो हो सकता है, राइट?
तो वैसे वाले सेंटेंस बना के हमें लिखने हैं और याद रखना है गोइंग टू यूज़ करना है, ठीक है। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। GT sees a man enter on a non-stop train to Adelaide. He has a suitcase in his hand. Now, जीत ने क्या देखा कि one person entered into a train which is a non-stop train. मतलब it doesn't stop on any other station except Adelaide, and he has a suitcase in his hand. So what do you think? What is going on over there? What would the man do? Obviously, the man is going to Adelaide. The man is going to reach Adelaide in few hours. So on the basis of the situation given over here, we can make it out ki what will happen in the future. So here, what is the man going to do? The man is going to reach Adelaide in few hours. Okay, now let's see second one. You see a bird flapping her wings and raising her body. Well, you see a bird who is flapping her wings and raising her body. So what is it going to do now? It is going to fly away. The bird is going to fly away. So you can see here I have used the word going to. और हमने पहले ही पढ़ा है going to का फॉर्म, उसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ता है, राइट। सो ओवर हियर along with the bird we are going to use is, because bird क्या है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए उसके साथ हमने इज़ यूज़ किया है, ठीक है। मैन के साथ भी हमने इज़ यूज़ किया है बिकॉज मैन इज़ ऑल्सो अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो जैसे कि हमने गोइंग टू का फॉर्मेशन देखा है, वी फर्स्ट राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट इज़, एम और आर, और उसके बाद क्या आएगा गोइंग टू, एंड द लास्ट थिंग वुड बी वर्ब बेस फॉर्म, जो पहला फॉर्म होता है वो, और इज़ एम आर हम सब्जेक्ट के बेसिस पे लगाएंगे। आपका सब्जेक्ट जो है उसके बेस पर हम इज़ एम आर लगाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। यू सी अ फ्यू बॉयज रनिंग टूवर्ड्स अ कूल पूल. Many boys are already enjoying themselves in the pool. So we can see some boys who are going towards the pool, swimming pool की तरफ भाग रहे हैं। अभी वो क्या करेंगे उधर जाके? Obviously pool में ही कूदेंगे, right? So what are the boys going to do? The boys are going to dive into the pool. So here along with going to we have used the helping verb are, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है। द बॉयज़ आर गोइंग टू डाइव इनटू द पूल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम गोइंग टू कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई प्रेजेंट सिचुएशन होती है, ठीक है, और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि अभी आगे क्या होगा, और वो चीज़ एग्जैक्टली हो ही जाएगी क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट में क्या हुआ है, राइट। अभी जैसे मान लो आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो क्या होगा फ्यूचर में, you are going to get good marks, right? If you study right now properly, what is the next thing that is going to happen? That you would be scoring good marks. So you are going to score good marks. Okay. Now let's see the next topic, that is shall. So let's see the usage of shall. Now let me just tell you, it is same as will. Okay. जैसे हम will use करते हैं वैसे ही हम लोग shall भी use कर सकते हैं. But the thing is, we use shall along with two of them, that is I and we. मतलब जो फर्स्ट पर्सन होता है, राइट, हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ हम लोग प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ shall. ओके, बाकी सबके साथ will ही जाता है। वैसे तो हम I के साथ और we के साथ भी will यूज़ करते हैं, लेकिन हम shall यूजुअली सिर्फ I और we के साथ यूज़ कर सकते हैं, नॉट अदर पर्सन, जैसे कि सेकेंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन है ही शी इट और विल. इट इज़ ओके इफ़ यू यूज़ इट, बट नाउ डेज वी डोंट यूज़ शेल ऑफन, हम लोग ज़्यादातर विल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आई और वी ऐसे वाले प्रोनाउंस है जिसके साथ हम लोग शेल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई शेल बुक द टिकट्स, तो हियर यू कैन सी द फॉर्मेशन, दे हैव यूज्ड आई एज अ सब्जेक्ट, उसके बाद शेल यूज़ किया है जैसे कि हम विल यूज़ करते हैं वैसे, और ये जो बुक है वो हमारा बेस फॉर्म है. सो इट इज़ सेम. यू फर्स्ट यू राइट सब्जेक्ट, देन यू राइट शेल,
जैसे कि हम विल लिखते हैं, और उसके साथ हमारा आ जाता है वर्ब का बेस फॉर्म. ठीक है, it is same. It is similar to I will book the tickets. Okay, there is no difference between two of them. So let's just see the usage and the different meanings of shall that conveys. So now let's see the usage of shall, where we will be using shall. Okay, so for the future actions, that means the actions which we are going to carry out in future. Okay, so for positive form we would be writing I shall be late tomorrow, or I shall be here at 8 a.m. So here you can see that we don't have any other verb except be, right? So along with shall we have used be, just like we use it along with will. In the same way we are going to use it along with shall, and make sure that we use shall along with I and we. Okay, I shall be late tomorrow and I shall not be late tomorrow. So here you can see that we have just added not to the sentence to make a negative sentence. I shall not be here, I have to go out. So these are positive and negative forms of shall when we are talking about future action. जब हम future action के बारे में बात करते हैं, मतलब कोई action जो हम future में लेने वाले हैं, ठीक है, या फिर हमने सोच लिया है कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, तो उस टाइम पे जब हम शैल यूज़ करते हैं तो ये वाला फॉर्मेशन होगा. ठीक है, और हम शैल की जगह पर विल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज़ विल इंस्टेड ऑफ शैल. नाउ लेट्स सी द सजेशंस. For suggestions, we can write in the positive sentence, shall we go to library now? So just like हमने सीखा है कि हम अगर सेंटेंस में विल यूज़ करते हैं तो हम विल को पहले ले लेते हैं और सब्जेक्ट को बाद में ले लेते हैं जब भी हम क्वेश्चंस बनाते हैं, राइट? So it's not necessary that suggestions should always be in question, but here there are some suggestions जिसके लिए हम shall यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि shall we go to the library. So here हमने क्या किया, पहले shall यूज़ किया, उसके बाद हमारा subject, and after that we used our verb that is in the base form, that is पहला वाला form. Okay, shall we go to the library now? This is suggestion. You can say some kind of idea which you can give to somebody else. Shall we move into the AV room later? So here also you can see we have used shall first as we are making the question. जब हम question बनाते हैं तब हम हमारा shall और will पहले लेते हैं. So here also we have used shall plus we जो हमारा subject है, और उसके बाद हमने यूज़ किया है move जो हमारा verb है. Shall we move into the AV room later? And instead of shall you can use should. ठीक है, shall की जगह पर हम should यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, should we go to the library now? Should we move into the AV room later? Okay. Now let's see offering and promises. ऑफरिंग मतलब आप किसी चीज़ के बारे में ऑफ़र कर रहे हो. ठीक है, मतलब जैसे अगर आपको किसी ने ऐसा बोला हो कि राइट नाउ आई नीड मनी, सो यू कैन से दैट आई कैन गिव यू सम मनी राइट नाउ इफ़ यू नीड इट, राइट? सो दैट इज़ कॉल्ड ऑफरिंग. सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल, आई शैल टेक केयर ऑफ योर पेट्स. सो यहाँ पे ये क्या है, टेक केयर ऑफ योर पेट्स, that is something you are telling or offering to your friend कि अगर उनको चाहे तो वो हम ये चीज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर वो चाहे तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये बात बताने के लिए हम shall यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, या फिर जब हम किसी चीज़ के बारे में प्रॉमिस करते हैं कि हाँ मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करूँगी, राइट? सो फॉर सच थिंग्स वी कैन यूज़ shall along with I and we. ये याद रखना है आपको कि हम shall किसके साथ यूज़ करते हैं, I और we use it along with I and we. Okay, I shall take care of your pets.
I shall book the tickets, don't worry. So here this is something you are giving a promise that you don't need to worry, I would do this work. Okay, so this is again a thing which would be taking place in the future. Okay, now, and this is positive sentence. When we make a negative sentence we can use never. ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सिर्फ नॉट ही यूज़ करना है. ठीक है, हम नॉट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस अगर हमें नेगेटिव बनाने हैं जहाँ पे नॉट सूट नहीं होता है, राइट, एट दैट टाइम वी कैन यूज़ नेवर. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नेवर फॉरगेट दीज हॉलीडेज. अभी आई शैल नॉट फॉरगेट दिस हॉलीडेज वो सूट नहीं होता है. ठीक है, इट इज़ ओके इफ़ यू राइट इट, बट नेवर इज़ मच बेटर ऑप्शन. So here you can see we have wrote subject first. ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा है, पहले subject I, उसके बाद आ गया shall and then not, sorry never, and then हमने लिखा है हमारा verb जो है base form में forget. I shall never forget these holidays. I shall I shall never stop trying. Here also you can see that we have used I, shall, then never and stop. Stop is your verb और never क्या present करता है, हमारा negative sentence present करता है. Okay, what does it present? नेवर क्या प्रेजेंट करता है, नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए सिर्फ नॉट लिखना ज़रूरी नहीं है, वी कैन ऑल्सो यूज़ नेवर. और यहाँ पे जैसे हमने आई शैल टेक केयर ऑफ पेट लिखा है या आई शैल नेवर फॉरगेट दीज हॉलीडेज, तो हम उसकी जगह पर विल भी यूज़ कर सकते हैं. आई विल टेक केयर ऑफ योर पेट्स या आई विल नेवर फॉरगेट दीज हॉलीडेज. यू नीड टू मेक श्योर वन थिंग, दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी एनीवेयर टू यूज़ शैल. यू कैन गो विथ विल फॉर ऑल द 3 पर्सनस. ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, हम हर किसी के साथ विल यूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमें शैल यूज़ करना ही है. ठीक है, लेकिन जहाँ पे हमको ऐसा लिखा गया हो कि यू हैव टू यूज़ शैल, देन यू कैन यूज़ शैल अलॉन्ग विथ आई एंड वी. हम शैल किसके साथ यूज़ करेंगे उसके बाद भी, सिर्फ आई और वी के साथ. लेट्स सी एक्सरसाइज सी ओवर हियर. Read the following situations. Use your imagination to write some suggestions and offering. And begin with shall I. So there is one situation given over here. उसके बेसिस पे आप क्या सजेस्ट करोगे सामने वाले को या क्या ऑफर करोगे. ठीक है, वो आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है. आई हैव रिटर्न सम आंसर्स. You can write the same one or you can write the different one. It's totally on you. Okay, let's see the first one. It is raining heavily. I need to reach the auditorium. सो somebody told you और योर फ्रेंड told you कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मुझे ऑडिटोरियम पहुंचना है, और मान लो आपके पास कार है, तो आप क्या ऑफ़र करोगे कि मैं आपको छोड़ दूँ वहाँ पे. सो शैल आई ड्रॉप यू इन माई कार. शैल आई ड्रॉप यू इन माई कार. तो यहाँ पे शैल, उसके बाद यूज़ किया है हमारा सब्जेक्ट दैट इज़ आई, एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव यूज्ड आवर वर्ब. ओके, ड्रॉप. Second is the cats are hungry. So what can you do if the cats are hungry? You can feed them. So you can write shall I feed the cats. You need to make sure कि आपका जो verb है, सॉरी आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे क्या है, cats है, तो वो cats ही रहना चाहिए. फिर चेंज मत कर देना और as लगाना मत भूलना. And make sure to put a question mark. The telephone is ringing. So what can you offer? That shall I answer the telephone, right? Someone is at the door, so you can open the door. So you can ask, shall I open the door? These bags are too heavy for me to carry. So you can help him out, right, to carry those bags. So you can write the answer, shall I carry these bags for you? Okay, so you have to write down these answers. Now exercise D is like you have to carry out by yourself. It's a fun activity. You can do it at your home along with your friends. Each one of you must write out one slip with a real or imaginary problem you face. Collect all the slips in 2 boxes. Your teacher will divide the class into 2 teams and give 1 box to each of them.
Your team calls out a problem from the box and the other team suggests a solution with an offer to help. Play this alternately. Remember to use will because it is the decision you will make at this point of time. ओके सो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है वो क्या है, आपको एक चिट के ऊपर अपना एक प्रॉब्लम लिखना है. वो रियल भी हो सकता है या फिर आपने ऐसे ही बनाया हो, ठीक है. और उसको फोल्ड करके सारी चिट्स को 2 बॉक्सेस में डिवाइड कर देना है. और आपके घर में कोई एडल्ट है तो उनको बोलना कि आप लोगों को 2 टीम में डिवाइड कर दे एंड ईच बॉक्स शुड बी गिवन टू 1 टीम, ठीक है. और एक टीम में से एक चिट निकाल के कोई प्रॉब्लम बताएगा और जो दूसरी टीम होगी उसमें से वो सजेशन देगा. एंड मेक श्योर व्हेन यू आर गिविंग अ सजेशन यू हैव टू यूज़ विल बिकॉज एट दैट मोमेंट ओनली यू वुड बी हियरिंग द प्रॉब्लम. हम उसी वक्त प्रॉब्लम सुनेंगे और उसके बाद सुनने के बाद हम उसका सोल्यूशन देंगे या फिर हम ऑफर करेंगे हेल्प, ठीक है. तो उसके लिए हमें विल यूज़ करना है. सो दिस इज़ एन फन एक्टिविटी विच यू कैन डू इट एट योर होम. एंड एक्सरसाइज ई, you have to make a list of 15 things that you will do in the future. It can be plans for the weekend or what you want to do when you grow up. Remember to use will, going to and shall correctly. So make sure कि आप will कब use करोगे और going to कब use करोगे, ठीक है. going to उसी चीज़ के लिए use करना है जिसके बारे में हम definite है कि वो चीज़ future में होगी ही होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, राइट. या फिर ऐसी चीज़ों के लिए जो हम करने ही वाले हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड आउट. और हम फ्यूचर टेंस के लिए विल कब यूज़ करेंगे, विल हम तब यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम एक्टिविटी विच इज़ हैपनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट. और उन चीज़ों के लिए जो हम मानते हैं कि वो फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है. और शेल आप यूज़ कर सकते हो आई और वी के साथ. इंस्टेड ऑफ विल यू कैन यूज़ शेल. सो देर आर 15 ऑफ देम विच नीड्स टू बी डन बाय योर सेल्फ. सो दिस इज़ योर होमवर्क. ओके, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ इन दिस टेक्स्ट बुक ओनली. और जो भी एक्सरसाइज आज हमने की है वो सारी एक्सरसाइजेज आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है. एंड विद दिस वी आर डन विथ आवर PT3 syllabus for grammar. From next video onwards, we would be starting with the new topics that would be your term 2 course or your next exam. But till here, we are done with our PT3 syllabus for grammar. Okay.